Hello friends, today we are going to discuss the concept of derivatives of composite functions. Before that, I am going to give you my introductions. I am Saurabh Khajure from AIM Science Academy Sandhurmata. There is one request to you, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के कुछ बेहतरीन वीडियोस आप देख पाओगे। तो आज हमें कंसेप्ट को डिस्कस करना है। दैट कंसेप्ट इज डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। बहुत अच्छी तरीके से हम इस कंपोजिट फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं और इस डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखना है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज इसेंशियल फॉर फिजिक्स आल्सो। बहुत सारे केसेस में कंपोजिट फंक्शन आता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली द कंपोजिट फंक्शंस। इसके पहले हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशंस क्या होता है। एक्चुअली डिफरेंशिएशन is given by the definition of differentiation actually is given by is f dash of x is equals to limit s tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. That is, there should be a relationship between derivative and continuity. So what should be the relationship between derivative and continuity? The one word you should have to remain that if the function is differentiable, okay, remain the word, if the function is differentiable, then it is a continuous. It should be continuous. But if the function is continuous, it may or may not be a differentiable. The one word is important. If the function is differentiable, it should be a continuous. इसका मतलब ये है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे वो सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस होंगे ही। ओके, बट इफ द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, इफ द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट शुड नॉट बी कंफर्म दैट इट इज अ डिफरेंशिएबल। और रहेंगे ही बता नहीं सकते, हो भी सकते, नहीं हो भी सकते। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, it should be a continuous, but if the function is continuous, it may or may not be a differentiable. Okay, actually its definition of differentiable is related with the continuity and it is given by f dash of x is equals to limit s tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. Okay, regardless of that, इसके पहले से हमें समझना है कि f dash of x actually होता है। So actually f dash of x is what, when we take a derivative, that is ddx of f of x, that is a derivative of f of x with respect to x, it is read as derivative of f of x with respect to x, it is denoted by f dash of x. बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये f of x क्या है, f of x actually f of x is what, f of x is called as a function of x. f of x is called as a function of x. ऐसा कोई भी फंक्शन सर, और हमारे मन में तकलीफ है, पहले तो हमारे मन में डाउट आया कि कंपोजिट क्या है, उसके पहले हमने डिस्कस करना पाया कि डेरिवेटिव जाने क्या, बराबर है। तो थोड़ा सा हम पहले डेरिवेटिव्स पे डिस्कस किए। डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, तो ddx of f of x is denoted by f dash of x। सर फिर हमारे मन में आया कि f of x क्या है, तो f of x सर हमने लिखा कि फंक्शन ऑफ x, लेकिन सर कुछ समझ नहीं आया कि फंक्शन ऑफ x क्या है, एक्चुअली फंक्शन ऑफ x क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि कुछ फंक्शंस कंपोजिट होते हैं। तो पहले फंक्शंस के टाइप समझते हैं। देयर आर एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो व्हाट आर दैट 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस? आई राइट इट वन बाय वन। फंक्शंस, ओके, सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है इजी वाला फंक्शंस। आप सभी को पता है दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसको कैसे समझें? So which function is called as logarithmic functions? The function which contains the log. सर जिस फंक्शन में log आता है उसको logarithmic functions कहा जाता है।
Just we take example, log x is obviously it is logarithmic function. Log of sin x is obviously a logarithmic function. Okay, but there is some exception. Okay, so log of tan t it is also the logarithmic functions. Okay, जिसमें log आएगा उसको logarithmic कहा जाता है. Okay, then the next function आता है logarithmic के बाद inverse trigonometry. Inverse trigonometry. Okay, what is inverse trigonometry functions? The function. सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि इनवर्स के साथ यानी कौन कौन साइन इनवर्स वाला tan इनवर्स वाला sec इनवर्स sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स ओके cot इनवर्स sec इनवर्स cosec इनवर्स ये सारे फंक्शंस की ग्रुप में आएंगे sin इनवर्स दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे. इसका मतलब सर फिर ये x का क्या मतलब है उस फंक्शंस के साथ. देखो sin इनवर्स ये फंक्शन हुआ log एक फंक्शन हुआ और x अगर मैं log x बोलता हूं तो log ये फंक्शन हुआ और x वेरिएबल समझ में आ रहा है. ओके सो सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंट्स व्हाट इफ आई राइट tan इनवर्स x क्या लिखा है बेटा फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x तो उसमें tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया ये फंक्शन हो गया और x ये वेरिएबल. ठीक है एक्चुअली डेरिवेटिव क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लो. जब भी हम आप सभी को पता होगा इन विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स एज आई गेट इंटरेस्ट इन फिजिक्स आल्सो सो we all know that. So what is velocity? हम generally velocity को ऐसे लिखते हैं पता है सर. So what we write velocity as? We write velocity as dx upon dt. Especially the definition of velocity is written as the derivative of displacement or the rate of change of. Okay, और बोलना है the rate of change of. ये rate of change of क्या है सर? ये rate of change of यानी होता है डेरिवेटिव्स. फॉर एग्जांपल हम समझ ले एक शहर की पॉपुलेशन 2016 में 40,000 थी और बढ़ते बढ़ते 2019 में 70,000 हो गई. तो उसका कुछ इंक्रीजिंग का रेट हर साल कुछ तो भी बच्चे आते होंगे. जो भी बर्थ होने वाला है बच्चों का उनका जो इंक्रीजिंग रेट है कुछ लोगों का डिक्रीजिंग भी यानी डेथ का भी रेट होता है मतलब नहीं लेकिन जो भी बर्थ का रेट एज कंपेयर टू डेथ का रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है. सो द रेट ऑफ चेंज इज नॉट बी नेवर बी ए लीनियर. रिमेंबर ये हमेशा लीनियर ही होता है सब. ओके लीनियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके सर टाइम के साथ साथ आदमी का डिस्प्लेसमेंट जैसा जैसा बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी. ओके लेट्स वी टेक एग्जांपल. अगर हम हमारे गांव से चांदनी बाजार से अमरावती की तरफ निकल गए पहले 5 मिनट में हमारा स्पीड 60 का था. बीच में कोई तो भी एक गांव आ गया स्पीड ब्रेकर ज्यादा आ गया थोड़ी सी ट्रैफिक था तो हमें स्पीड कम करना पड़ा. तो अगले 5 मिनट में हमारा स्पीड शायद कम भी हो सकता है और आगे हमारा स्पीड पीछे से सबसे पहले से ज्यादा बढ़ भी सकता है. यो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ध्यान रखना. इट इज कॉल्ड एज एक्चुअली वेलोसिटी. हमें वेलोसिटी की जानने की जरूरत नहीं है हमें डिफरेंशिएशन समझना है. सो व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंशिएशन? सर जो भी रेट ऑफ चेंज हुआ किसमें रेट ऑफ चेंज हुआ? रेट ऑफ चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में. किसके मुताबिक हुआ? टाइम के मुताबिक हुआ. यानी टाइम के अनुसार ये वैल्यू जो बदली यानी टाइम पे ये वैल्यू डिपेंड है. ये सब राइट सर. हम 5 मिनट में एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो लिख के रखेंगे. आगे के 5 मिनट में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके क्या ट्रैवल किया वो हम लिख के रखेंगे. यानी हम जो डिस्टेंस लिखने वाले हैं वो हमेशा टाइम के मुताबिक ही लिखने वाले हैं. यानी ये जो क्वांटिटी हुई दैट dt दैट इज अ टाइम इट इज इंडिपेंडेंट. ये किस पे डिपेंडेंट नहीं होता है पता है ना. एक्चुअली हमें एक वर्ड बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि बेटा आपने आपके पेरेंट्स ने भी आपको बहुत बार बोला होगा कि बेटा ध्यान में रखना टाइम किसके लिए नहीं रुकता है. बराबर ना क्योंकि ये टाइम किसके लिए रुकता ही बराबर ना. आज हम थोड़ा सा एकदम प्रिसाइज से जूझ रहे हैं सभी पूरा वर्ल्ड प्रिसाइज से जूझ रहा है. हम कोरोना में अटके हुए हैं लेकिन ये टाइम भी निकल जाएगा. दुख के भी दिन निकल जाते हैं सुख के भी दिन. So that time is independent. ये किस पे डिपेंडेंट नहीं है और इस टाइम के मुताबिक जो हमारा डिस्टेंस सो ये कौन है सर? ये होता है डिपेंडेंट. समझ में आया कि इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट. इट मींस व्हाट? व्हाट इज द बेसिक definition of derivatives?
The derivative is what? The rate of change of dependent quantities with respect to independent quantities is called as differentiation. आप लिख सकते हो, what is the differentiation? The rate of change of dependent quantities with respect to independent quantities is called as differentiation. Okay, ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया होगा। अभी नाउ फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला हमने लिखा लॉगरिथमिक। सर ऐसे सारे फंक्शंस जिसमें पहले लॉग आता है, मेन फंक्शन लॉग होता है, उसको हम लॉगरिथमिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है लेकिन इनवर्स के साथ, सो दैट ऑल द फंक्शंस आर कॉल्ड एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। आगे का मैं लिखता हूं एक्सपोनेंशियल। देखो बेटा कौन सा लिखता हूं, एक्सपोनेंशियल। सीधी बात, बहुत इजी बात। सर जब पावर में वेरिएबल जाएगा और कांस्टेंट में यानी बेस में कांस्टेंट आएगा, लाइक आई विल राइट द एग्जांपल 2 raised to the power x. Obviously it is what? It is exponential function. Why? Because what is exponent? Can you describe the exponent? Actually exponent is what? देखो मेरे को आदत क्वेश्चन भी खुद ही पूछूंगा, आंसर भी खुद ही लिखूंगा, ओके, लेकिन आपको थोड़ा सा पूछूंगा। So in that, what is exponential? Exponential and that word is related with exponent. And exponent का अलग यानी दूसरा मतलब होता है indices. क्या होता है बेटा? Indices यानी जब वेरिएबल indices में जाएगा, हम उसको और थर्ड वर्ड बोलते हैं exponent, indices, and it is called as power. Okay? जब वेरिएबल पावर में जाएगा तो बेस में कौन आएगा? कांस्टेंट आएगा। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट ना, जब बेस में कौन आएगा? कांस्टेंट आएगा। सो दैट ऑल द फंक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो सर हमारे मन में एक डाउट है सर कि x रेज़ टू द पावर क्या होता है? लेट वी अंडरस्टूड कि x भी और y भी दोनों वेरिएबल्स हैं। अभी कैसा होगा सर? सर हमारी कंडीशंस क्या थी? हमारी एक कंडीशन थी कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल कहा जाता है, variable should bear the power and variable should bear the power. It means what? X raised to the power y. यानी variable के power में यदि अगर variable है तो that function is also called as the exponential function. Understood? But कुछ लोगों को डाउट होगा सर x cube ये कौन सा फंक्शन है? ये एक्सपोनेंशियल होगा क्या सर? क्योंकि 3 that is power में 3 है, 3 is a constant. So 3 is a constant, so power में 3 नहीं चाहिए। हमें पावर में वेरिएबल चाहिए, पावर में यहाँ पे कांस्टेंट गया, सो दैट x क्यूब इज नॉट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपके मन में घूम रहा होगा तो x क्यूब क्या? इसका आंसर आपको मिलेगा नो। ओके, सबसे पहले हमने देखा है लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसका बाकी बन गया, इसको लिखा हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल और एक हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्वियसली आएंगे। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? सारे 6 को 6 के 6 हमारे दुश्मन उनको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, these all functions are comes under the group of trigonometric functions. Okay, now we are moving towards the next and the last algebraic functions. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और सबसे इजी फंक्शन है algebraic function. What is algebraic function exactly? जो फंक्शन, देखो मेरे पास एक ट्रिक है algebraic को समझने के लिए। जो फंक्शन लॉग में नहीं बैठेगा यानी जिसमें लॉग नहीं आएगा, जो फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं बैठेगा, जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल में नहीं बैठेगा, जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं बैठेगा, तो रहे हुए सारे जो क्लास ग्रुप है इसमें आएगा अलजेब्रिक। यानी आप अभी रिमाइंड कर सकते हो जो क्वेश्चन जो फंक्शन मैंने लिखा था x क्यूब करके, ये फंक्शन कौन से ग्रुप में आएगा? दैट x क्यूब इट कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। उस किस ग्रुप में आएगा बेटा? अलजेब्रिक फंक्शन। व्हाई सर इसमें लॉग है क्या? नहीं, चलो ये कट गया। सर इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या? नहीं कट गया। सर एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट वेरिएबल पावर में क्या? नहीं कट गया। सर ट्रिग्नोमेट्रिक क्या? नहीं कट गया। तो हमारी ट्रिक जो ऊपर के 4 इसमें नहीं बैठा, किसमें बैठेंगे? अलजेब्रिक फंक्शंस में बैठेंगे। ओके, स्टूडेंट विल गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लेट्स सर इसका दूसरा नाम भी है अलजेब्रिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज समहाउ। ओके, समहाउ इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शन। आप लिख सकते हो that function is also called as a polynomial function. Understood the concept? Okay, these are the functions. सर function of x यानी क्या? चलो और एक बार इस पर रिपीट करेंगे। function of x इन सारे functions में जब वेरिएबल x आएगा, okay, that any functions amongst that 5 with किसके साथ? x के साथ, then that function is called as a function of x. Understood my
पॉइंट एवरीवन। सो ये हम फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन आज का हमारा पॉइंट ये फंक्शन नहीं था, आज का हमारा पॉइंट नहीं ये सारी, ये तो बेसिक बात निकली इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज का हमारा पॉइंट था कि कंपोजिट फंक्शन क्या है सर डेरिवेटिव समझ में आया, रेट ऑफ चेंज जो होता है सर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ, उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, वो भी समझ में आया सर। फंक्शन भी समझ में आए, 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं, उसको हम फंक्शन ऑफ एक्स जनरली एफ ऑफ एक्स से दिखाते हैं। लेकिन अभी सर इसका कंपोजिट क्या है, ओके, थोड़ा सा कंपोजिट के बारे में बताओ सर। सो व्हाट इज अ कंपोजिट? कंपोजिट नाम में ही है कंपोजिट। जब हम हमारे घर पे चूड़ा बनाते, चूड़ा सिर्फ बेसिक बातों का नहीं होता, उसमें टमाटर भी लगेगा, नींबू भी लगेगा, ओके, चूड़ा भी लगेगा, मुरमुरे भी लगेंगे, यानी इट इज अ मिक्सचर, ओके। तो सिमिलरली कंपोजिट इज व्हाट? कंपोजिट आल्सो द मिक्सचर, ओके। रिमेंबर द वर्ड कंपोजिट को सर आपने किसके साथ जुड़ाया था? कंपोजिट को मैंने चूड़ा के साथ जोड़ दिया था, ओके, आप ध्यान में रखो। सो इट इज अ composite, a function which contains more than one functions. सर वो सेम कैटेगरी के रहे या अलग अलग रहे तो ही चलेगा। Understood the word? What is composite function? The function which contains more than one function, यानी 2, 3, 4 many जितने भी functions में रहेंगे, वो एक से ज्यादा वो सारे functions को हम कहेंगे composite function, okay? सो उसका यानी एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूँ, साइन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स। कौन सा लिखा था मैंने? साइन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स। सर इसको कैसे समझेंगे? साइन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स इस फंक्शन में अगर देखा जाए तो इसमें साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई रेज़ टू द पावर एक्स इट इज एक्सपोनेंशियल बिकॉज़ ई हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू 2.67 अप्रॉक्सीमेट टू 2.67, ओके। ये लॉग की इसमें साथ में यूज किया जाता है, वेरिएबल पावर में गया सर, e is a constant term, so e raised to the power x is an exponential function, sin is a trigonometric function। तो sin of e raised to the power x इस फंक्शन में कंबाइन में एक से ज्यादा यानी दो फंक्शन आ जाए, so that function is called as this function, चूड़ा फंक्शन यानी simply for composite function, ओके, ठीक है, थैंक यू। सो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन सर? इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट। देखिए थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाए सर। कंपोजिट तो है, लेकिन इन दोनों फंक्शंस में हमारा मेन फंक्शन कौन सा है? e raised to the power x मेन फंक्शन है या sin मेन फंक्शन है? तो दो, एक तो sin नहीं तो e raised to the power x, तीसरा तो i है। तो मेन फंक्शन इन दोनों में से कौन सा है? अमंग्स दैट टू फंक्शंस sin सर सबसे पहले आने वाला है, क्योंकि x यानी sin x अगर हम बोलेंगे तो x इज वर्क्स एज एंगल और उस एंगल की जगह e raised to the power x काम करने वाला है। सो दैट e raised to the power x इज द सेकेंडरी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इज द सेकेंडरी फंक्शन एंड sin इज द प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, कंसीडर। सो सर अभी इसका डेरिवेटिव कैसे लेना सर? कुछ ये भी तो बता दो। कंपोजिट समझना है, डेरिवेटिव समझना है, फंक्शन समझना है, अभी सर सभी का एक साथ कर लो और हमें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट बता दो। चलो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चलो इसका ही लेंगे फॉर एग्जांपल e डॉट g y is equals to, let me take y is equals to sin of e raised to the power x, ठीक है सर। इसमें पहला फंक्शन कौन सा है? तो sin, ओके। दैट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय अ चेन रूल। इसको क्या कहा जाता है बेटा? चेन रूल, ओके। सो लेट मी टेक आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो लिखना जरूरी है, इसको आप मानते हैं। सो y का डेरिवेटिव आएगा बेटा dy by dx इज इक्वल्स सर सबसे पहला sin या हमारी इसमें फंक्शन है, तो इसको हम x अज्यूम करेंगे। देखो बेटा इसको हमेशा हम कोरिलेटेड करेंगे, ध्यान रखना है। इसको हम x अज्यूम करेंगे, इसको अगर हम x अज्यूम करेंगे तो ये sin x बनेगा। क्या बनेगा? sin x, and we all know that what is the derivative of sin x? It is cos x, बराबर x की जगह इंग्लिश को रखो और इनटू चेन रूल क्या बताता है? इनटू ddx ऑफ जिसको x समझा, x किसको
e raised to the power x को उसको रख दो, समझना है? What quantity you should be considered at x, keep it into derivative of that x. ओके, समझना है? जिसको आप x समझेंगे उसका डेरिवेटिव आपको उसके साथ ddx में लिखना है। देखो और एक बार साइन मेन था, sin x डेरिवेटिव ऑफ sin x इज बिकम्स cos x, जिसको x समझे उसको रख दो इनटू जिसका x समझे उसका डेरिवेटिव। सो व्हाट इज इट्स फाइनल आंसर? इट इज रिटन एज cos of e raised to the power x and ddx of e raised to the power x that you all know, it is e raised to the power x। तो फाइनल आंसर इस दोनों का प्रोडक्ट होगा कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। सो आंसर इज e raised to the power x into cos of e raised to the power x। दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। ओके, सो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं दूसरा वाला। सो लेट y is equal to, for example, tan square of sin inverse x। सर सबसे पहली बात, अभी इसमें क्वेश्चंस, मेरा ये क्वेश्चन है आपको, इसमें फंक्शंस कितने? सर tan दिखता है, बिल्कुल राइट। sin इनवर्स दिखता है, बिल्कुल राइट। tan ट्रिग्नोमेट्रिक है, बिल्कुल राइट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, बिल्कुल राइट। सर इतने ही है, बिल्कुल रॉन्ग। सर ऐसे कैसे हुआ? फंक्शंस तो दो ही दिख रहे हैं। अरे भाई ये टू का भी तो कुछ मतलब है। अरे ये सर नो। सो ये जो पावर में टू आ रहा है, ओके, ये जो पावर में टू आ रहा है, इट हम पढ़े थे बेटा, ये जो पावर में टू है, ये पावर है, ये जो स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan of sin इनवर्स ऑफ x और इसका स्क्वायर। यस सर, अगर हम इसको x समझेंगे तो ये x स्क्वायर बनेगा। इस ब्रैकेट को अगर हम क्या समझेंगे? x समझेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। और ध्यान रखो x स्क्वायर कौन सा फंक्शन था? x स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन था, उसमें लॉग नहीं, इनवर्स नहीं, tan नहीं, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, वेरिएबल पावर में नहीं, तो रहा कौन था? अलजेब्रिक फंक्शन। यानी इस केस में दो नहीं, कितने फंक्शंस हैं? तीन फंक्शंस। ओके, पहला कौन सा? सो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्योंकि हमें मेन फंक्शन समझना जरूरी है। तो पहला फंक्शन कौन सा? tan है कि sin इनवर्स है कि पावर। सर फंक्शन तो तीन हो गए, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स। तो इसमें का मेन फंक्शन कौन सा होगा? देखो आगे समझो बेटा। आप सबसे पहले ऐसा करोगे, इसको tan of sin इनवर्स का होल स्क्वायर ऐसा करोगे, यानी होल स्क्वायर ये सभी को है। इसलिए मेन फंक्शन हमेशा, अगर इस केस में अगर देखा जाए तो इस केस में मेन फंक्शन रहेगा कौन सा? पावर। ऐसा मेन फंक्शन कौन सा? पावर में मेन फंक्शन रहेगा। यानी हमें इसको समझना पड़ेगा कि हम टर्म डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव है dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये बन रहा है x स्क्वायर, इसको x समझिए इस ब्रैकेट, dx ऑफ x स्क्वायर इट इज 2x। x की जगह x समझना है कि नहीं बेटा सभी लोग? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बराबर, और बाद में इनटू करके ddx और जिसको x समझा वो लिख लो, वो tan sin इनवर्स x। ओके, फाइनल आंसर नहीं हुआ। सो इट इज 2 into tan of sin इनवर्स x बराबर। सो ddx of tan, सर अभी मेन फंक्शन स्क्वायर तो चला ना, स्क्वायर का तो डेरिवेटिव हमने लिया, अभी डेरिवेटिव किसका? tan का, यानी इसको x समझो बराबर है, क्योंकि tan का लेने वाला है। व्हाट इज द ddx ऑफ tan x? इट इज sec स्क्वायर x की जगह को sin इनवर्स x। सर और ddx ऑफ जिसको x समझा, x किसको समझा? sin इनवर्स x को समझा बराबर है। तो उसको इनटू में रखो और डबल से लिखो 2 into tan of sin inverse x into sec square of sin inverse x, and what is the ddx of sin inverse x? This is 1 upon under root of 1 minus x square। अभी x का लिख के भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ddx of x होता है 1। अभी इसको प्रॉपर्ली लिख लो, इसको लिखूंगा dy by dx, dy by dx is equal to, कोई कैंसिल वगैरह कुछ भी नहीं, ये नहीं आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, so 2 into tan of sin inverse x बराबर into
6 square of sin inverse x upon under root of 1 minus x square. Okay, so it should be our final answer. 2 into tan of sin inverse x into 6 square of sin inverse x upon under root of 1 minus x square. Okay, so ये हो गई हमारी बेसिक के कुछ न्यूमेरिकल्स. अभी थोड़े से हम हार्ड न्यूमेरिकल्स यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, चलो पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में से लिखता हूँ. टेक्स्ट बुक में दिया है इफ y is equals to sin square of log of 2x plus 3 find dy by dx. ओके, क्या पूछा है? फाइंड dy by dx. चलो मेरा आपको सभी को पढ़ना है. How many functions are there? Sir, sin, log, algebraic, because yes, obviously it is algebraic function 2x plus 3. Okay, so ये भी algebraic function. यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हम इसको लिखेंगे y is equals to sin of, ये जो स्क्वायर है ये पूरे का है, तो sin of log of 2x plus 3 और इसका whole square. इस सभी को समझ में आया? It is works as x square. क्या बन गया बेटा? x square बन गया. So what is the derivative of x square? चलो बताओ. अभी यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्ली. Differentiate with respect to x. y का derivative dy by dx is equals to x इस ब्रैकेट को समझे dx of x square 2x यानी पूरा जैसे का जैसा sin of log 2x plus 3. लेकिन जिसको x समझा उसका डेरिवेटिव इनटू ddx करके वो आएगा sin of log 2x plus 3. So again 2 into sin of log 2x plus 3, right, and close into sin. अभी इसको एक समझना है, इस पूरे ब्रैकेट को समझ लो बेटा प्रॉपर क्या? sin x what is dx of sin x cos x की जगह x cos of log of 2x plus 3. ओके, अभी मैं लिख रहा हूँ, बाद में लिखना बंद करूँगा क्या? into ddx of ये सर इसको sin का डेरिवेटिव हमने लिया, अभी x को लिखना होगा into ddx of log of 2x plus 3. So again what we need to do? 2 into sin of, ये तो ऐसे ही रहेगा log of 2x plus 3. ओके, ये भी cos of log 2x plus 3, right, into ddx of log. What is the derivative of log x? ये log x बढ़िया 1 upon x, 1 upon x की जगह है into और into ddx of 2x plus 3. सर थोड़ा सा यहाँ पे समझना है. ये क्या बन गया? ये कैसे लिखते हैं बेटा? 2 log of 2x plus 3 यहाँ भी है, log of 2x plus 3 यहाँ भी है. सो ये थोड़ा सा अगर थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए अगर मैं इसको ये समझूं, क्या समझूं? x, तो फॉर्मूला देखो क्या होगा? 2 sin x into cos x, और हमारे पास फॉर्मूला ऐसे है 2 sin x into cos x is equal to sin 2x. बराबर sin का डबल का फॉर्मूला इसको दो मींस dy by dx इस पूरे जगह की जगह आएगा sin of 2, ये लिखा पहले sin और ये 2, x की जगह कौन आएगा? x कौन था? ये कौन log 2x plus 3. ओके, और ये ऐसे था, यानी यहाँ पे लिखता हूँ 2x plus 3 into, चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे डेरिवेटिव प्लस में सेपरेट होंगे, डेरिवेटिव ऑफ सम सभी को पता होगा. प्लस में सेपरेट होने के बाद 3 का डेरिवेटिव 0 और 2x का 2 बाहर, ओके, और x का 1, यानी इसका प्रोडक्ट यहाँ पे 2 आएगा. तो फाइनल आंसर मिलेगा 2 sin, ये 2 हमने लिखा 2 sin 2 of log 2x plus 3, ओके, 2x plus 3 upon 2x plus 3. ये शुद्ध फॉर्म. ओके, सभी को समझ में आ रहा है? It is the simple way to understand the concept of derivatives of composite functions. Okay, actually today we are taking the derivative of composite functions part 1. It is part 1. कुछ
पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने पार्ट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी रहेंगे उतने पार्ट्स हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में पढ़ेंगे। इट इज वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक न्यूमेरिकल। देखो थोड़ा सा और एक बार हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर स्क्वायर फंक्शन, तो पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव, बाद में साइन x इसको x समझा, बाद में log और बाद में 2x+3 समझना सभी को। So now we are moving towards the next numerical of that derivative of composite functions में हम आगे का न्यूमेरिकल करेंगे। ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल रहेगा। If y is equals to log 3x plus 2x plus 1, क्वेश्चन है फाइंड dy by x। क्या क्वेश्चन है बेटा? फाइंड dy by x। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है। सबसे पहली बात, इस प्रश्न में मेन फंक्शंस को दिख रहा है। अभी स्क्वायर है लेकिन अंदर छुपा है यहाँ, क्योंकि ये स्क्वायर सिर्फ x का है, बराबर है ना, पूरी इसका नहीं है, इसलिए स्क्वायर मेन फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेन फंक्शन कौन रहेगा? log रहेगा। सो डिफरेंशिएट डायरेक्टली ना विद रिस्पेक्ट टू x, y का रहेगा dy by dx इज इक्वल टू log x dx of log x 1 x, इसको x समझे, इसको x समझा, 1/x into ddx of, जिसको x समझा वो लिख लो, that is 3x plus 2x plus 1। okay, so equals to 1/3x plus 2x plus 1 बराबर into ddx, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। सर पहले प्लस पे सेपरेट, अभी थोड़ा सा लिख के दे दो, प्लस पे सेपरेट 3 बाहर, 3 into ddx of x square plus 2 into ddx of x plus ddx, ये लास्ट वाला, so equals to 4 आएगा। so ये 3 बाहर, ddx of x square बनेगा 2x, ये मल्टीप्लिकेशन का 3, यहाँ ये लिख लो पहले 3 into 2x plus 2 into ddx of x is 1 and ddx of 1, ddx of derivative is 0, derivative of constant is 0, sorry, it is upon 3x square plus 2x plus 1 is equals to 3 to the 6x plus 2 1 the 2 upon 3x square plus 2x plus 1। This should be our final answer। okay, सभी को समझ में आ रहा है? okay, so in this way we can find the derivative of composite function। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? पार्ट 1 डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, पार्ट 1 हम इसको बोलेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस पार्ट 1 में हम पढ़े हैं फंक्शंस क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है, और डेरिवेटिव्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे पढ़े। आज हम यहाँ पे रुकेंगे, इसके रिलेटेड कुछ होमवर्क्स आपको जस्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके लिखे जाएंगे। सो लेट्स थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। और एक बार रिक्वेस्ट कर दूँ, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे